انشاءاللہ باقی جو باتیں ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کے نوجوان کھلاڑیوں اور نوجوان جتنے بھی میرے بھائی ہیں اور اسٹیج پہ بیٹھے مرشد شاہ, ڈاکٹر استاد سامع گلواز اور تزیم شاہ, اور میرے سامنے میرے بڑے بھائی عبدالزمان صابر بھائی اور صابر کے ساتھ بیٹھے ہوئے, سب کو میرا السلام علیکم قبول ہوا. یہاں پہ آج اس 2 دن پہلے میری شکل تھوڑی سی گھبرائی ہوئی تھی, لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں مطمئن ہوں میں. کیا مطمئن ہوں آپ کے لیے ابھی میں سمجھاتا ہوں ساری بات. یہاں پہ جو کہ جس وقت دربند کی جو بات چھڑی, دربند کے گراؤنڈ کی بات, تو سب سے پہلے میں نے پوسٹ دیکھی, میں نے سب سے پہلے قدم اٹھایا, پھر اس کے بعد میں نے ویڈیو لگائی, ویڈیو کے بعد میں نے پھر مختلف, جس میں اس کے بعد میرے یہ جو صحافی بھائی ہیں بالخصوص کیا وہ ماجد بھائی, ماجد نے پوسٹ لگائی, پھر ڈاکٹر صاحب نے پوسٹ لگائی, اس کے بعد تقریباً یہ سلسلہ چل پڑا. تو پھر میں شام کو جس وقت گیا گراؤنڈ میں تو مجھ پہ تھوڑا سی کپ کپی تاری ہوئی تھی, ڈر بھی تھا کہ اگر میں اس جنگ میں کود پڑا تو سامنے اتنے بڑے مجھے جو تصویر کے لوگ ہیں, اس کے بعد واردات سرکاری کرنی, اگر آ گیا تو پھر یہ نوجوانوں کے ساتھ کیا بنے گا. دونوں طرف میرے لیے ایک بڑا عجیب سا منظر بن گیا تھا, لیکن جانا تو تھا, کسی نے کسی کو پڑھنا تھا. شاید ہر کوئی اسی وجہ سے ڈر رہا تھا کہ اگر میں بیچ میں پڑ گیا تو یہ میرے گلے نہ پڑ جائے, یہی وجہ تھی بیچ میں. تو جس وقت میں شام کو گیا, شام کو میں نے اس وقت سب یہ میرے جو بھائی ہیں مبشر شاہ, ڈاکٹر صاحب اور ماجد کو میں نے کال کی, انہوں نے تمام جتنے بھی کھلاڑی تھے گراؤنڈ میں جمع کیے. وہاں پہ ہم نے پورا جو تقریر تھی وہ تقریر کر کے میں سوشل میڈیا پہ لگائی, پھر واٹس ایپ کے ذریعے میں نے اپنے جو سیاسی قائدین ہیں سب سے پہلے میں نے کیپٹن صفدر کو سینڈ کی, ان کی طرف سے رپلائی آیا. پھر میں نے سردار صاحب جو اس وقت سعودیہ میں تھے ان کو میں نے کہا کہ کوئی ایسی ترتیب دیں, ان کی طرف سے بھی پازیٹو سائن مجھے ملا. پھر میں نے اپنے گور نواز بھائی کو, جو میرا بہت قریبی انتہائی قریبی آدمی ہے, گور نواز بھائی کو, بابر کو, میں نے تو سب کی طرف سے جس وقت رسپانس ملا تو دوسرے دن دوسری وقت شام کے وقت کیپٹن صاحب کی طرف سے کال جو ماسٹر لیکن کی طرف آئی, تو ماسٹر صاحب نے مجھے دوبارہ کال کی اور ماجد کہا کل شام کے وقت یہ پروگرام سیٹ اپ کرنا ہے آپ نے, کل 11 بجے کے ٹائم. جیسے پروگرام کل ہوا, پرسوں جب یہاں پہ ہوا تو ایک نیا سلسلہ چل پڑا, ایک نئی ایک گروپ پھونک گئی. یعنی میرے آنے کے بعد میرا ساتھ جو سب سے زیادہ جو اس میدان میں کودا ہے وہ ماسٹر لیاقت ہے. میں اس کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی بھی میرے بھائی تھے, سب کو آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آ سکے, شاید کوئی مجبوری ہو سکتی ہے ان کی, لیکن ماسٹر لیاقت پوری پہنچے. ماسٹر لیاقت نے یہاں پہ آتے ہی انہوں نے ایک اعلان کیا کہ میں اس کیس کے لڑنے کے لیے اگر آپ کو جو سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن دائر اگر کرنی ہے تو وکیل کا تمام اخراجات میں خود ادا کروں. اسی طرح ہے نا, حالانکہ میں نے ذاتی طور پہ یہ کوشش کی تھی کہ جب وکیل کی ضرورت پڑے گی تو میرے سعودیہ میں بیٹھے ہوئے بھائی یا میرے لاہور میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی یا کوئی پنڈی میں سب سے ملا کے میں اگر 5,000 2,000 خرچے میں اپنی فیس پوری کر لوں گا. مجھے امید تھی پوری, لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ فیس جتنی بھی خرچہ آئے گا میں ادا کروں گا, جو ہمارے لیے سب سے ایک نیک شگون تھا. تو یہ میرے لیے بڑا مشکل وقت تھا. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ پچھلے سال انہیں کے دنوں کی بات ہے, یہ جو ابھی دریا نیچے جا رہا ہے ان دنوں کی بات ہے کہ میرے گاؤں میں لڑکے مچھلیوں کا شکار کرتے تھے, کنڈی پھینکتے تھے اور مچھلیوں کے لیے. تو میں بھی ایک دن ان کے پاس جا بیٹھا, میں نے دیکھا کہ اچانک ایک مچھلی آتی ہے, کنڈی پہ لگ جاتی ہے, لیکن وہ کنڈی کو اٹھا کے سمیت اس کے پیچھے بوتل لگی ہوئی بوتل کو لے کے بھاگ جاتی ہے دریا میں. وہ جب جو لڑکا جس کی کنڈی تھی اس کو پریشانی پڑ گئی, اتنی بڑی مچھلی میرے ہاتھ میں ویسے نکل گئی. وہ دوسرا لڑکا دوڑتے یہاں پہ ابھی رکشا بھی چلاتا ہے, شباب نام ہے, وہ دوڑ کے دریا میں کود پڑا, اس کے پیچھے تیرنا شروع کر دیا, کافی آگے نکل گیا. جب نکلا تو وہ جب وہ بوتل کو پہنچا, بوتل کو پہنچ کے انہیں اپنے گلے میں ڈال لی.
तैरना शुरू किया, लेकिन मछली की ताकत के सामने उसकी क्या ताकत थी दरिया में तो इंसान की ताकत कुछ नहीं। मछली लेकर उसके अंदर चली गई। जब चली गई तो उसने अचानक फिर उससे तार निकली, उन्हें तब से जोर से चीखना सुनाना शुरू कर दिया, मुझे बचाओ किसी तरह। लेकिन वो उसकी कपकपी शुरू हो गई थी। तो साथ बैठे हुए काफी सारे और थे, क्या कौन ऐसे बचाएगा? मैं खुद सबसे बड़ा तैराकी में, यानी कि बसाख से लेकर दुकानी तक मैं तैर के आया हूँ, जिसकी गवाह काफी लोग हैं। क्या आज मैं इतना बड़ा तैराक है नहीं बचा सकता? अगर और कौन ऐसा बचाने वाला होगा? जैसे वो एक दफा डुबकी को उसने खोता खाया, दूसरी बार वो नीचे बैठ गया। अब हमारी टांगे काम नहीं शुरू होगी। जगह इतनी थी ऐसे जैसे वो जरूर होटल इतने दूर तक था, वो नजदीक ही नहीं था कि नजदीक वाला चला मुड़। लेकिन अगर फिर मैंने इसी तरह ये मंजर, या अभी ग्राउंड का मंजर, ऐसा मंजर वहां भी पेश आया हमारे पास। अब मैं छोड़ता हूँ तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ा था, जाता हूँ फिर भी अगर मैं उसको लट निकालने जाता हूँ तो मेरा वजन क्या, मैं जाऊंगा वो मेरे ऊपर छलांग लगाएगा, मुझे डबो देगा। लेकिन मैंने अल्लाह से तौबा की, मैं बाकी बैठे हुए किसी में हिम्मत नहीं हुई, मैं छलांग लगा दी, कुर्ता निकाला, अपना दौड़ा पहुंचा। जब तैरता तक पहुंचा वो नीचे बैठ गया। जाते हुए मैंने नीचे, जैसे नीचे दरिया में गया, उसके बाल के बाल मेरे हाथ में आए, मैंने उठाया और उठा कर उसको आगे फेंक दिया। वो फिर नीचे डूबने लगा, फिर मैंने आगे पहुंचा, फिर मैंने उठाया, फिर फेंक दिया। नजदीक मेरे आता था, मैं धक्के मार के मुझसे करते करते 15-20 दफा मैंने निकालते, हालांकि मेहरबानी से किनारे तक पहुंचा दिया हमने। मेरी जान भी बच गई और उसकी जान भी बच गई। आज वो फिर हमारे साथ ही जिंदा है, वरना कब से आया उसकी। यही सिचुएशन अब मेरे सामने थी। ये जो मैंने अभी वाकया पेश किया, ये सिचुएशन अब मैं ग्राउंड में जा रहा हूँ, कोई भी पहली दफा इतने बड़े अड्डा के सामने जाएगा, लेकिन उसका भी डूबने का खतरा था। अब छोड़ता है तो उसके लिए बेइज्जती है, क्योंकि अब जब उनके प्लाट बन जाएंगे, ग्राउंड में नहीं मिलेगा तो आपके लिए सारी जिंदगी कोई जगह नहीं। अब छोड़ दें तो आपके लिए जगह नहीं। अब जाते हैं तो आगे बाबडा सरकारी मामलात हैं और 741 आदमियों के प्लॉट्स हैं, अब उनके लिए भी मसला है। लेकिन हम कूद के बाद हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग हमारी उनके साथ भी हुई, जो सबके मुदई थे हमारे दोहर के भाई, उनके साथ भी मीटिंग हमारी हुई। उनकी तरफ से भी हमें मामला मिले। सब चीज का निचोड़ करते 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 हम इस सब नैज पर पहुंच गए हैं कि अब हम इंशाल्लाह कल या परसों, या तकरीबन कल या परसों के दरमियान में हम इंशाल्लाह हम जाएंगे और आपका केस अदालत में इंशाल्लाह लाजमी लड़ेगा इंशाल्लाह। दूसरी खुशखबरी आपको सुनाऊं, ये केस हम इंशाल्लाह जीतेंगे। विधि आपको मैं देख कर देता हूँ इंशाल्लाह, आपका ये ग्राउंड का और जितने भी अब प्रेशर है हम पे, वो प्रेशर हमने हैंडल कर लिया है। मास्टर साहब के साथ अभी मेरे तकरीबन 1 घंटा मीटिंग यहाँ पे हुई थी, हम एक साथ ही बैठे हुए थे। जो हमने तरतीब बनानी थी, किस किस के साथ मीटिंग करनी है, किसके साथ मिलना है, किसके साथ, जो कैप्टन साहब ने हमें जो बात बताई वो भी हमने पूरी जिन्हीं की बात हो चुकी है। इसके बाद हम हाई कोर्ट में जैसे जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे पूरे वकीलों के साथ, या कि हम सिविल कोर्ट से बात करेंगे, क्योंकि वो वकील हमें पूरी तफसील देंगे, कानूनी इसकी जंग जैसे होगी। बहरहाल आप ये मुतमैन हो भी सकते हैं, ना होने की बात यह है कि आपने अपने दिल में राज नहीं रखनी है, क्योंकि सामने मदई भी है, जो कोशिश करेंगे। लेकिन अपनी हम तो इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करके आपको, आपकी जंग हम भरपूर लड़ेंगे इंशाल्लाह। जितनी जिंदगी रही इंशाल्लाह आपके साथ हम खड़े रहेंगे। मैं खुशी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपने नौजवान खिलाड़ियों का, हकम भाई हैं, तजीम शाह हैं, और ये गुलसामा नवाज थे, डॉक्टर साहब ने जिस तरह तकदो की है, सामने उन लड़कों को भी जमा किया और भरपूर तरीके से दिली तौर पर अगर कोशिश की है तो माजर और सामने भरपूर कोशिश की है। जबील है, इसके बाद ये मुबशर शाह हैं, जिन्होंने इस सिलसिले में आपके साथ भरपूर कोशिश। लेकिन थोड़ा सा दुख इन्हें भी होता है और मुझे भी इसलिए होता है कि आप लोग यहाँ पे आगे जो वो तादाद हमें चाहिए होती है, जो प्रोटेस्ट करने के लिए उतनी तादाद अभी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी काफ़ी है। 2 से 2-11 बन जाते हैं, 2 भी यहाँ तो काफ़ी हो जाते हैं, 11 तो काफ़ी है। तो इस वक्त काफ़ी सारे लोग हमारे पास जो जितने भी हैं लड़के हैं, आप मजीद उन तक ये अभी सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है वो सोशल मीडिया है।
आपकी तमाम बातें सब लोग अभी गौर से देखेंगे। इसके बाद हमारी वीडियो सब लोग देखेंगे कि आपने कौन सी बातें आज की मीटिंग में की हैं। तो उनके लिए भी इंशाल्लाह पैगाम है, दरबंद के देखने वाले तमाम हमारे भाई जितने भी वीडियोस देखने वाले हैं, जितने भी जिनकी दिलचस्पी इस ग्राउंड में है, इस पार्क में है, ये 225 कनाल में है जिसकी, तो इंशाल्लाह जिन लोगों को अगर प्लाट भी नहीं मिले, मैं आपके सामने ये बात करना चाहता हूँ इस मीडिया के सामने, जिन लोगों को दरबंद में प्लाट भी नहीं मिले वो भी हमारे साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह आपका केस हम लड़ेंगे, इसी केस में हम उसको भी शामिल करेंगे और आपका केस भरपूर तरीके से लड़ेंगे। अदालत जो भी होगी, चाहे आपकी सिविल कोर्ट से सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जितनी अदालतें हैं हम जाएंगे, क्योंकि आप पीछे हटने का तो रास्ता हमारे पास है ही नहीं, पीछे हम किसी सूरत में नहीं हो सकते। आपका केस हम भरपूर लड़ेंगे और इंशाल्लाह आप जीतेंगे और आपको ये तो स्टेडियम बन के दिखाएंगे जैसे डरबन का स्टेडियम साउथ अफ्रीका का, वैसे स्टेडियम हमें नहीं बना बंद का नहीं है, इंशाल्लाह डरबन का होगा। डरबन जैसे साउथ अफ्रीका, डरबन जैसे दरिया के किनारे उनका भी स्टेडियम है, सेम सिचुएशन, सेम ऐसी की भी कंडीशन है। तो इंशाल्लाह आपका डरबन का स्टेडियम सिर्फ हमारे हाथ में, ये जमीन का हमें हाई कोर्ट जैसे या बाबा चेयरमैन हमें हाथ में दे, उसमें के बाद ग्राउंड हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है, ग्राउंड बनाना कोई मसला ही नहीं है, हम चंदा करके बना लेंगे सिर्फ जमीन के अंदर। ये पहले वाले ग्राउंड की जो बात कर रहे हैं जो नवाब फरीद ने दिया, आज मेरे नाम क्यों फैल है। जब मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर था, डिस्ट्रिक्ट उस वक्त मैं चेयरमैन था पूरे डिस्ट्रिक्ट का, पूरे जिला मानसरा का स्पोर्ट्स कमेटी का, तो मैंने उस वक्त ये वज़ीर-ए-आला से स्टेडियम किया, वो फैल मेरे नाम पे है। लेकिन नवाब फरीद ने उठा के मेरे भाई बराल वालों की शादी मेरी बड़ी दिल लगी और बड़ा प्यार मोहब्बत है, उनको मिल गया, मैं उनसे भी बहुत खुशी का इज़हार कर रहा हूँ। लेकिन दरबंद के लिए अगर जिस वक्त जगह बन गई इंशाल्लाह, तो मुझे उम्मीद है हमारे पास वक्त जो PTI के हमारे भाई के वर्कर थे, हम इस बात पे ये नहीं कि हमारी वो पार्टी ये पार्टी, अभी सूबे के लेवल पर उनकी हुकूमत है, मरकज में उनकी पोजीशन है, लेकिन सूबाई लेवल पर उनकी हुकूमत है। उनमें हमारे जो MPA साहब है कराम खाजी, मेरे भतीजे की तरह है, उनके वालिद साहब मेरा, यानी कि मैं और दोनों के वालिद साहब है, मैं एक जगह मेंबर रहे और बड़ा करीब मेंबर मेरा था वो, यानी कि 288 मेंबरों में डावर खान लाला मेरा साथ है जैसे भाई था, हम दोनों एक साथ थे। उसका बेटा ये मेरा भतीजा है, वो उसके साथ भी भरपूर तरीके से, और उसके अलावा जो मेरी एफिलिएशन जो थी इलेक्शन में शहजाद खान के साथ, उनके वाले PTI में है, आदम खान स्वादी साहब वो PTI में थे। उस वक्त PTI की सतह पर सूबाई लेवल पर इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट हमें स्पॉट ऑफिसर बना कर देगी। अगर रही बात अभी कैप्टन साहब सफदर साहब से, उनकी तो क्या ही बात है, कैप्टन साहब जो है उनके मरकज में हुकूमत है, सरदार साहब की हुकूमत है, और हमारे गुरनवाज भाई के बाबर गुरनवाज की हुकूमत इस वक्त मरकज में सूबाई कौमी सतह पे। तो PCB जो क्रिकेट बोर्ड जो हमारा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके जो नबाज फेडरेशन में जो इस वक्त हमारे आदमी है, तो इंशाल्लाह PCB के थ्रू से हमें स्टेडियम बना के दे देंगे। लेकिन इंशाल्लाह जिस दिन हमें जमीन अगर मिल गई तो आज शाम को हम इंशाल्लाह जाएंगे। डॉक्टर साहब आपके पास भी जो तस्वीरें वो तस्वीरें खैनों की जो ग्राउंड की तस्वीरें कलेक्ट करके हमें मुकम्मल आप प्रोडक्ट से निकालेंगे, जो फाइल बनाएंगे वो फाइल बना के हम आगे जाके अदालत के सामने जज के सामने वो पेश करेंगे। तो आपने वो पुरानी तस्वीरें, नई तस्वीरें, जो ग्राउंड की तस्वीरें बना के, जो यहाँ पे बच्चों के खेलने के ग्राउंड है, उसके अलावा हमारे पास ग्राउंड ही कोई नहीं है, उस ग्राउंड पर हम इंशाल्लाह अदालत में, आप हमारे पक्का ध्यान बन गया, हम इंशाल्लाह अदालत में हमें, और अदालत के अलावा जो चीज़ है जो सियासी मामला हैं, तो वो भी हम आपको बता दें कि जिस वक्त हम अदालत में चलेंगे तो हमारे पास फैम हो जाएगा, मिल जाएगा। जो हमारे मुतासरीन भाई हैं जो कोरहर वाले हैं, उनके लिए प्लाटों का इंतजाम भी अब इंशाल्लाह हम उनके साथ भी मिलकर कोशिश करेंगे, उनके लिए प्लाटों की पूरी कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो तो बजने में उनको देंगे, जो फालतू यहाँ प्लाट उनके लिए मिले तो उनको प्लाटों के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। और दरबान के लिए जो कैप्टन साहब जो अभी मिलेंगे चेयरमैन वार्डा से, वो पूरी कोशिश करके फंडिंग करके उनके एक जगह में प्लाटिंग दे देंगे। तो दरबान के लिए जो जितनी भी ज़मीन है हमारे पास 225 कनाल, इसके पार्क और ग्राउंड के लिए हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से, या जिन लोगों के दरबान के लोगों को प्लाट नहीं मिले, जिनके रहते हैं, उनके लिए इंशाल्लाह पूरी वैसी में इसी कैच में लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप भरपूर तरीके से हमारे साथ हमारे बैकअप करोगे ना इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जिस तरह आप जितने भी भाई यहाँ पर जमा है, अपने तमाम दोस्तों को, अपने तमाम भाइयों को, अपने तमाम जो आपके साथ क्रिकेट खेलने वाले उन सबको इकट्ठा करें, और इस बात पे आप हमारे बैकअप आपका भरपूर हो, और इंशाल्लाह आपकी जोर, आपकी ताकत और आपके जो जज्बे के साथ हम आगे भरपूर तरीके से आपका कैसे लड़ेंगे इंशाल्लाह।